Hello everyone. Today, myself, Aman Jambal, welcome you all in the class of chemistry. Today we're gonna proceed with our previous video based on electrochemistry. In the previous video, we have learned various things and terms related to electrochemistry, and today we are going to continue with the same chapter. Basically, it is a chapter of NCERT book, chapter number 3 in the 12th standard, and you can study it through NCERT or depending upon your syllabus which has been given to you. But this unit starts basically from intermediate level, sorry, after 10th in the 12th class. And if you wish to pursue your career in the research or particularly in the chemistry itself, so this unit is further carried out in the different higher standards, for example in BSc as well as in MSc. And sometimes if a student wants to pursue his career in the PhD in the electrochemistry or electrochemical research, so yeah, this chapter holds there also. So starting from this unit, so basically, yeah, so in the last video I have already given about my introduction. So in electrochemistry, in the last video we have learnt about what is an electrochemistry. Basically it is a branch of chemistry which deals with the study of production of electricity from chemical energy, as well as you can say that vice versa, or you can say rapid interconversion of chemical energy into electrical and electrical into chemical. Basically we know that there are two kinds of energy. First one is electric energy. Particularly in this field there are two kind of energy, and second one is chemical energy. And in electrochemistry we deal how to convert the chemical into electrical and electrical into chemical, and design different machines which can work in this manner. Yeah, so basically I am talking about just wait a moment. Yeah. Mm. 40 and 3 14. Yes. So yeah, basically I'm telling you about the interconversion of electrical energy into chemical, and vice versa is known as the electrochemistry, or the branch which deals with this interconversion. And there are prerequisites which I already told you in the previous video. Then we have learnt about what is the importance of electrochemistry. Basically any new topic which we wish to study or want to study has a relevance on a practical scale. Why? Because we in science we do not waste time on stupid things, or things that do not have a practical application. Even it yeah, there are different types of topics. Some has a wide range of application, some has a small range of application, but in science there is no topic which has a zero application at all. For example, we just spent our time to do some kind of research which has no application. Basically, if it is has if anything which has been discovered in this field of science, if it has no direct application to the society or to the world, or universe, it has an indirect approach towards the application, or any kind of you can say just approach in the practical scale, which can be or you can say that it has an way through which we can explain different phenomena in the universe. So now starting sorry, basically we have learned about the importance of electrochemistry and the principle of electrochemistry. Then after that we have learned about conductors, different type of conductors, and finally electrolytes, and further different kind of electrolytes.
Finally, we have learned about cell, what is a cell in the chemistry, and types of cell, electrochemical, electrolytic. Then we have learned about their characteristics. So basically in the characteristics feature, we have learned about their assembly, their nature of electrodes, movement of electrons, spontaneity, star, sold bridge. So through these characteristics, we have find out that what are the similarities, what are the differences between an electrochemical and an electrolytic cell. Finally, apart from these characteristics, we have learned about the diagram and the practical, or you can say that the working principle of the electrochemical cell, electrolytic cell. Then features of electrochemical cell, because basically electrochemical cell is the main part in this chapter, particularly through according to syllabus. But yeah, electrolytic cell itself has a own also very wide range of applications. But if we go through the syllabus of 12th standard, usually according to our NCRT, so basically electrochemical cell is the main cell which we will learn in the next videos as well. So then we have learnt about general representation of an electrochemical cell. So today through in this video I am going to show you the representation of electrochemical cell again, and then we will continue the same PPT throughout the video. So basically in the general representation of an electrochemical cell, I already mentioned in the previous video that कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है, सेंटर में क्या होता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, दो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. यस, सो दिस इज नोन एज द सोल्ट ब्रिज. और सोल्ट ब्रिज क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. बट फिलहाल के लिए हम मान के चलते हैं कि एक सोल्ट ब्रिज है. डायग्राम में भी मैंने बताया था कि सोल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड यू टाइप का एक कॉलम होता है. Now in the left hand side it is known as the oxidation half cell, and in the right hand side it is known as the reduction half cell. So in the left hand side, if there is an oxidation half cell, it comprises of again two components in the general representation, not in the whole working model of the electrochemical cell, because there is another things weaker instruments solution like. But in the representation of the oxidation half cell, we only represent two things. First one is the metal in the pure state, and second one is in oxidized state. Generally metal first is represented by in pure state, but in some cases it has a different oxidation state. So होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, this is also known as the anode because it behave as a electron donor. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले हमने लिखा है जिंक, देन लिखा है जिंक 2 पॉजिटिव. अब इससे हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है कि यहाँ पे जिंक जो है वो कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव में. क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है जिंक. अब ये कैसे हो सकता है, तभी हो सकता है ना जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, लूज किए, इसने छोड़ दिए, जो कि कोई और एक्सेप्ट करेगा. याद रखना है, कोई और एक्सेप्ट करेगा, ठीक है. और इसी से आगे हम टेंडेंसी और ईएमएफ को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे. तो जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, सो ये जिंक 2 पॉजिटिव बनाता है. तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दिस इज नोन एज द एनोड एंड दिस इज नोन एज द cation form, particularly in the solution state. Then in the right hand side there is reduction half cell. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है. यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉपर इज कन्वर्टेड, कॉपर 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू copper. So copper लिखो, copper solid लिखो. So copper is known as the cathode which is immersed in the copper 2 positive solution. So आप जनरल रिप्रेजेंटेशन से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे एक तो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, जिंक की जिंक 2 पॉजिटिव में, और रिडक्शन कहाँ हो रही है, कॉपर की कॉपर 2 पॉजिटिव की कॉपर में. अगर हम फर्दर जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कुछ एक और पोस्टुलेट होते हैं, तो हम इससे बहुत ज़्यादा आइडिया लगा सकते हैं. क्या देख हो कि पहला रिएक्शन जो है जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में वहां पे हो रहा है, जिंक जो कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में. और सेकेंडली क्या हो रहा है,
जो रिडक्शन हाफ सेल है वहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तभी क्या होगा, ये कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो कॉपर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या पता चलता है, दैट जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। और इससे हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस भी हो जाता है और ऑल अराउंड आइडिया भी मिल जाता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कॉपर जो है वो डोनेट कर रहा है और जिंक जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। देन by convention cathode is represented on the right hand side and anode on the left hand side। बेसिकली होता क्या है, अगर हम 2 कंटेनर लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक है, इसमें ये सोल्ट ब्रिज हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आ गई हमारे पास एक और ये आ गई सेकेंड। दीज आर 2 रोड्स और इनमें से कोई कैथोड भी हो सकती है, कोई एनोड भी हो सकती है, एंड यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया उन्हीं के कॉरेस्पॉन्डिंग आयंस का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पता लगेगा, जरूरी थोड़ी नहीं है कि कैथोड जो है वो राइट हैंड साइड में हो, जरूरी थोड़ी नहीं है कैथोड लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो इसके लिए हमने एक कन्वेंशन मान ली। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कैथोड जो है, कैथोड क्या है, कैथोड है लेफ्ट हैंड साइड में, कैथोड क्या है लेफ्ट हैंड साइड में। Yeah, basically, according to convention, we have decided that in the right hand side we will write the in the right hand side we will write the cathode, and in the left hand side we have written anode. And why we have put this sign convention, because there is a formula to calculate EMF of the cell, and which we will discuss in the next video or in the next slides। उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि एनोड किस तरीके से वर्क करेगा और कैथोड किस तरीके से वर्क करेगा। और ये इनको राइट में क्यों लिखा, यहाँ पे तो हम बता रहे हैं कि हमने कन्वेंशन मान लिया, लेकिन इसको माना क्यों, ताकि हमें एक थोड़ा सा इजी हो जाए अगर हम जब उस फॉर्मूले को प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं या कैलकुलेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ एक और चीज़ थी हमने जो यहाँ पे पढ़ी कि ये जो थी ये सिर्फ जनरल रिप्रेजेंटेशन थी। जब जनरल रिप्रेजेंटेशन हम किसी भी चीज़ की करते हैं, या पर्टिकुलरली हम जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है, या बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, अभी तो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें तब मिल पाएगी जब हमें इसके साथ साथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशंस भी पता हों। अब आपको पता है कि अगर आप मान के चलो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, उसमें 2 कंटेनर्स होते हैं, ठीक है, कंटेनर्स के साथ साथ सोल्ट ब्रिज भी होता है, ठीक है, सोल्ट ब्रिज के साथ साथ दोनों में सॉल्यूशन भी होते हैं। अब दोनों में सॉल्यूशंस जो होते हैं, मान लो यहाँ पे आपको पता कि हम अपने साइन कन्वेंशन के हिसाब से यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एनोड ही होगा। चलो मान लिया हमने ये एनोड ही होगा, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज ही होंगे। तो मान लो यहाँ पे जैसे जिंक है, यहाँ पे हमने कॉपर है। अब कॉपर यहाँ पे जो है वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो होगा उसमें होगा, लेकिन सॉल्यूशन में होगा, और यहाँ पे भी जिंक 2 पॉजिटिव। तो इनके साथ कौन सा ऐसा एनाइन होगा जो जुड़ा होगा, क्या दोनों में सेम होगा या दोनों में डिफरेंट होगा? सो इट इज नॉट क्लैरिफाइड विद द जनरल रिप्रेजेंटेशन, सो दैट इज व्हाई वी नीड सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नाउ कमिंग अप टू द फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज। एक और चीज यहाँ पे आती है कि सोल्ट ब्रिज की जरूरत क्या पड़ी। हमने पढ़ा यहाँ तक कि सोल्ट ब्रिज क्या होता है, ये जो यहाँ पे इन्वर्टेड यू है, क्या है, इन्वर्टेड यू है, ये दिख रहा है आपको, ये कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड यू होता है ट्यूब करके ये, और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होती है? देयर आर मेन 2 एप्लीकेशंस। फर्स्ट वन इज इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड अलाउज द फ्लो ऑफ करंट। बेसिकली ये सर्किट को कंप्लीट करता है और फ्लो ऑफ करंट को एक अच्छे तरीके से चलाता है। एंड सेकंड, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑन बोथ साइड्स। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब एक चीज आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में कि कोई भी चीज, जैसे मान लो ये एक वायर है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे ये की है, ये यहाँ पे बल्ब है,
मेरा बल्ब कुछ अजीब सा बना, बट ये अगर बल्ब है तो यहाँ पे ये तभी ग्लो करेगा ना जब ये की जो है क्लोज होगी, सर्किट जो होगा वो क्लोज होगा। तो जब तक सर्किट क्लोज नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है। सो बेसिकली एक तो इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये होती है, एंड सेकंड वन इज द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? एक और चीज़ याद रखनी है, अगर इलेक्ट्रिकल आपने सर्किट कंप्लीट करना था तो इसकी जगह आप कोई और वायर भी डाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो? क्यों कंप्लीट आप किसी अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करवाना है तो आप एक वायर भी डाल सकते थे, ठीक है। एप्लीकेशन ये भी कर रहा है बट वो भी कर सकती थी, बट जो मेजर इसकी एप्लीकेशन होती है दैट इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, एंड दैट इज व्हाई वी नीड ए इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सोल्ट ब्रिज। एंड पर्टिकुलरली जो सोल्ट ब्रिज होता है दे जनरली कंटेन सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये याद रखना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, जैसे कि पोटाशियम नाइट्राइट एंड पोटाशियम क्लोराइड। इनमें भी पोटाशियम क्लोराइड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। वाई? बिकॉज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ पोटाशियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर सेम। इन दोनों का जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वो सेम होता है। तो इससे अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर जो सर्किट को क्लोज है वो तो मैंने समझा दिया, लेकिन ये पीएच को या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को किस तरीके से बताएगा कि किस तरीके से वो जो है दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव का एक कैटायन है और यहाँ पे एक ही एनाइन है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको पता है रैपिडली जिंक 2 पॉजिटिव फॉर्म हो रहा होता है और यहाँ से कॉपर 2 पॉजिटिव रैपिडली रिमूव हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैटायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होती है, जस्ट वेट, यस। और राइट हैंड साइड में क्या होता है, एनाइन की कंसंट्रेशन, ये नहीं अच्छी, राइट हैंड साइड में एनाइन की कंसंट्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे कैटायन इंक्रीज हो रहा होता है, यहाँ पे एनाइन। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे कैटायन जब अक्यूमुलेशन हो जाती है तो कैटायन जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच होने लग पड़ते हैं। क्या हो जाते हैं? अटैच होने लग पड़ते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके यहाँ पे क्यों डोनेट करेंगे, वो बोलेंगे कि मैं भी तो जिंक 2 पॉजिटिव हूँ, मेरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो। तो एक जिंक जो है वो दूसरे जिंक को डोनेट कर रहा होता है, जस्ट एक इस तरीके की पॉसिबिलिटी हो जाती है। बट ये राइट हैंड साइड में क्या होता है, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है वो भी तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉपर सॉलिड बन रहा है। अब कॉपर सॉलिड जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन जो है वो इसके चारों ओर अकोमोलेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अकोमोलेशन हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो उसका ईएमएफ होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, और वो भी सडन अमाउंट ऑफ टाइम में ही। तो इसको थोड़ा कंटिन्यू करने के लिए और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को रखने के लिए सोल्ट ब्रिज की इम्प्लीकेशन होती है। और चूंकि हमने बताया पहले भी कि यस, हमने पहले भी बताया कि यहाँ पे एक सोल्ट ब्रिज में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जनरली स्ट्रॉन्ग ही होता है, जैसे KCl मान लिया, तो वो क्या होगा, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटाशियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब पोटाशियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में जब वो ब्रेक होगा तो इन दोनों का जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है वो सेम होता है, और वो क्या होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो जब पोटाशियम पॉजिटिव जो है वो कुछ ऑपोजिट साइड में मूव करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक पॉजिटिव कैटायन मूवमेंट हो रही है, कैटायन इकट्ठे हो रहे हैं, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आ गया। जब Cl नेगेटिव आ गया तो जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ पे अटैच होने के बजाय यहाँ पे भी अट्रैक्शन शो करेगा, तो इलेक्ट्रोड जो है वो थोड़ी सी फ्री हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो स्मूथ हो जाएगा। अल्टीमेटली ईएमएफ जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। राइट हैंड साइड में सल्फेट आयन जो होते हैं वो कम्युलेट हो रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली वहाँ पे उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल करने के लिए पोटाशियम पॉजिटिव जो है वहाँ उस तरफ को माइग्रेट करना शुरू कर देता है, कुछ इस तरीके से माइग्रेट करेगा यहाँ पे पोटाशियम पॉजिटिव। बट एक चीज़ याद रखनी कि सोल्ट ब्रिज में स्टार्टिंग में बताया होता है कि इसके जो एंड्स होते हैं वो कॉटन प्लग से लगे होते हैं। क्या होते हैं? कॉटन प्लग से। तो यहाँ पे आयंस जो होता है वो ऐसे नहीं कि बीकर में या फिर जो उसका कंटेनर है उसी में ही आ जाएगा, वो वहाँ पे रहेगा बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा, यानी कि चार्जेस जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे ना हो पाए बट कि एक सोल्यूशन में एक यूनिफॉर्मली घूमते रहें, ब्राउन इन मूवमेंट शो करते रहें, ना कि वो एक जगह पे अक्यूमुलेट हो जाए। Finally, in the next slide, what is the transport number or the transference number? So basically, the current flowing through an electrolyte is carried by the ions. ये हमें पता है. The fraction of the current
carried by an ion is called its transport number और transference number. बेसिकली आप ये भी बता सकते हो कि एक फ्रैक्शन है और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक परसेंटेज भी बन जाती है. वाई? बिकॉज अल्टीमेटली आपको पता है कि सॉल्यूशन में सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कैरियर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, बट सॉल्यूशन फेज में क्या होता है, आयंस जो है उनकी मोबिलिटी जो है वो एक चार्ज, आप बोल सकते हो चार्ज का फ्लो क्रिएट करवाती है और उसी से ही करंट जो है वो पैदा होता है. ठीक है, या करंट के मूवमेंट होती है, चार्ज का मूवमेंट होती है जिससे करंट पैदा होता है. तो चार्ज की मूवमेंट या पर्टिकुलरली किस आयन के कारण, किस आयन की मूवमेंट ज़्यादा है, किस आयन की मूवमेंट कम है, ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका ट्रांसपोर्ट नंबर. ठीक है, अब मान लो टोटल करंट जो है, यस, टोटल करंट आ गया मान लो 100 एम्पियर. अब मान लो इसमें से ए बी मान लो, या KCl मान लो, KNO3 मान लो, NaCl मान लो, कुछ भी मान लो. ठीक है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है. अब यहाँ पे एक केटाइन होता है, एक एनाइन होता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से ही होता है. अब एक केटाइन इस 100 एम्पियर के करंट में से कितने करंट को खुद रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि 100 एम्पियर तभी बना ना जब इलेक्ट्रॉन, ये जो पोटाशियम का आयन भी मूव किया, क्लोरीन आयन भी मूव किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बट पोटाशियम कितना मूव हुआ, क्लोरीन कितना मूव हुआ. अगर पोटाशियम ज़्यादा होगा तो मान लो से उसके कारण 60 एम्पियर है, क्लोरीन थोड़ा स्लोली किया, थोड़ा 40 अगर उसके कारण करंट है, तो इसका टोटल जो था वो तो 100 था. ठीक है, तो जितना उसके कारण हुआ और डिवाइडेड बाय टोटल, that is known as the transport number, and that is why we have written here that the transport number of cation is equal to the current carried by cation divided by total current, and transport number of cation anion, here we have to written it as anion, current carried by anion divided by total current. And evidently the total number of n plus nc plus na is equal to 1. why? because अगर आप इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हो तो डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन आ जाएगा, और न्यूमिनेटर जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो वो भी डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा, एंड सेम टर्म डिवाइडेड बाय सेम टर्म इज इक्वल टू 1. सो अल्टीमेटली आप अगेन इस चीज़ को समझ लीजिए, जैसे मान लो 100 kg वेट है, वो हमने ट्रांसपोर्ट करना है A टू बी, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है. हमने क्या कर लिया, 2 घोड़े हायर कर लिए, H1 H2. अब मान लो एक 60 उठा रहा है, दूसरा 40 उठा रहा है, तो इसका ट्रांसपोर्ट नंबर कितना आ गया, 60/100, और इसका कितना आ गया, 40/100. ठीक है, अब ये 60 उठा रहा है. ठीक है, अब इसके कारण और भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होंगे. अब जब ज़्यादा वजन उठा रहा है तो स्पीड में भी इन्फ्लुएंस होगा ना. हाँ, अलग बात है कि वो सेम स्पीड में पहुंच जाते हैं, वो अलग केस है, बट हम मान के चलते हैं कि इनकी मोबिलिटी जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. या फिर आप जरूरी नहीं है यहाँ पे वेट का क्राइटेरिया लो, अगर आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है. ठीक है, 10 बजे रेस स्टार्ट होती है 10 AM पे, और एक साइड में C1 कार्बन है और दूसरे में C2 है. अब यहाँ तक पहुँचने के लिए C1 लेती है 1 घंटा, तो इसकी स्पीड हुई 100 km/h, और दूसरा जो है वो लेती है 2 घंटे, तो उसकी हुई 50 km/h. तो इनका ट्रांसपोर्ट नंबर्स, या फिर आप बोल सकते हो कि इनका शेयर टुवर्ड्स द टोटल वैल्यू और टोटल स्पीड जो है वो डिफरेंट हो जाता है. सो यही चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट नंबर बताती है. लास्ट वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि पोटाशियम क्लोराइड को प्रेफर किया जाता है. वाई? बिकॉज पोटाशियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव की जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर या सेम हो जाता है. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. देन coming up to the electrode potential. So we have learned in the electrochemistry that what is electrochemistry, what are its applications, what are the principal types of cells, types of electrolytes, types of conductors, like that, representation diagrams, functions of salt bridge, transport number. But now the main application of electrode potential is the potential. आप सेल को इन्वेंशन किया, आपने सेल को इन्वेंट किया, या आपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, तो उसकी कुछ एक सफिशिएंट वैल्यू भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप 100 ml अगर आप कोई सोल्यूशन लेते हो और उससे करंट जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट का ही प्रोड्यूस होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट का ही प्रोड्यूस होता है, जिसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है. ठीक है, रियलिटी में आप उसको यूज़ ही नहीं कर सकते हो.
ठीक है। हाँ, स्टडी के लिए ठीक है, बट उसका एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा वो चीज़ जो है वो थोड़ी यूजलेस हो जाती है। ठीक है। सो मेन थिंग इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मान लो आप कम कंसंट्रेशन में या कम एक पोर्टेबल थिंग में ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट करवा सकते हो, या ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रिकल जो केमिकल एनर्जी जो है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी को इंक्रीज करवा सकते हो, सो दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक. Now, what is the electrode potential? So basically it is an tendency of an electrode. अब इलेक्ट्रोड क्या होती है? सॉलिड स्टेट में उसकी प्योर स्टेट होती है, जो मेटल होता है जनरली वही होती है, बट कई बार उसमें वो आयनिक स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकती है. So when an electrode is in contact with the solution of its ions in a half cell, it has a tendency to lose or gain electrons, which is known as electrode potential, and it is expressed in volts. Why? Because potential difference is expressed in the volts, and it is an intensive property independent of the amount of species in the reaction. So basically it only depends upon the nature of the electrode present over there. Apart from that, there are no other factors which can differentiate between you can say the इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. वो सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड करती है. जैसे जिंक है, ठीक है, तो जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो सेम ही रहेगा, चाहे वो कॉपर के साथ कनेक्ट करवा दो, चाहे आप बोल सकते हो कि जो उसका कैडमियम के साथ करवा दिया, आपने कोबाल्ट के साथ करवा दिया, हाइड्रोजन के साथ करवा दिया, किसी के साथ भी उसकी अपनी वैल्यू जो होगी वो सेम रहेगी, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रोड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस. अब मान लो जिंक जो है, जिंक कनेक्टेड किया हुआ है हमने जिंक टू पॉजिटिव में, तो जिंक को जिंक टू पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो पोटेंशियल है, वो सेम ही रहेगा. वाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन रिमूव तभी होता है आउटर शेल से जो उसकी आयनाइजेशन वैल्यू जो होती है वो अचीव कर पाता. आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सेम ही रहेगी, चाहे वो कॉपर के साथ कनेक्ट हो जाए, कैडमियम के साथ रहे, कोबाल्ट के साथ रहे, हाइड्रोजन के साथ. हाँ, इनके साथ कनेक्ट जब होगा वो, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो डिफरेंट हो सकती है. तो आयनाइजेशन के अलावा जो एनर्जी बचती है, आप उसको बोल सकते हो कि उससे अलग फैक्टर्स है, अलग चीज़ें जो है वो हम देख सकते हैं. बट जो मेन थिंग, द आयनाइजेशन इन थेरेपी एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल इटसेल्फ रिमेन सेम, और इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पीशीज. ऐसे नहीं है कि जिंक ज़्यादा है तो ज़्यादा हो जाएगा और कम है तो कम हो जाएगा. Now, the main reason or main conflict behind that, it is not possible to determine the absolute value of electrode potential. Electrode potential की absolute value हम find out नहीं कर सकते हैं. अब यूँ क्यों नहीं कर सकते हैं? बेसिकली आप मान के चलो कि कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं देगी या एक्सेप्ट तब तक नहीं करेगी जब तक एक सराउंडिंग का इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होता. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है, हमें पता है कि ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं या एलिमेंट्स जो होते हैं वो एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड्स की स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, प्योर स्टेट में प्रेजेंट होते हैं. बट हमेशा याद रखना वो इलेक्ट्रॉन तभी देंगे या एक्सेप्ट करेंगे जब एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. अब मान लो आपको पता है कि सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बट ये तभी देता है जब ये मॉइस्चर के साथ कनेक्ट हो जाता है, एयर के साथ कनेक्ट हो जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वाटर के साथ, ह्यूमिडिटी के साथ, या किसी एक्सटर्नल एजेंट या इन्वायरमेंट के साथ. अगर आप एक पोर्टेबल या फिर आप बोल सकते हो आइसोलेटेड, बिल्कुल ही आइसोलेटेड, ना एयर ना कुछ, वैक्यूम, और उसके अंदर आपने सोडियम रखा है, मजाल है सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, मजाल है कि इलेक्ट्रॉन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव कर दे. वाई? हालांकि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम है, बट स्टिल देयर इज सम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, और वो जब तक अचीव नहीं कर पाएगा, इसको जल्दी नहीं लगी है. इट इज़ आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो डोनेट तो करना चाहती है, एक्सेप्ट तो करना चाहती है, बट तब तक नहीं करेगी जब तक उसको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी या एक कोज नहीं पता चले. साइमल्टेनियसली जब तक कोई इलेक्ट्रॉन ही लूज नहीं करेगा, तो दूसरी साइड में जो उसका गेनर है वो भी नहीं कर पाएगा जब तक उसने लूज ही नहीं की है. तो अगर वो अकेला बैठा है, जैसे क्लोरीन ही है, ठीक है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर सकता है. सो साइमल्टेनियसली हम बोलते हैं कि क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है.
नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब हमें यही तो पता नहीं चलता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे हमने जस्ट वेट, यस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड ले ली, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे है जिंक सल्फेट, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे 2 नेगेटिव है। अब यहाँ पे आपको पता है कि जिंक जो है वो जिंक 2 में कन्वर्ट होना चाहता है, जिंक जो है वो जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होना चाहता है। यस, इट हैज़ अ टेंडेंसी बट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे थोड़ी नहीं रिमूव करेगा। जब ये जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। अब उनको साइमल्टेनियसली कोई चीज जब एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, एंड दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकेंडली एक और चीज हमने पढ़ी है कि जिंक तो इलेक्ट्रॉन तभी लूज करेगा ना जब उसको आयनाइजेशन इंथैल्पी चाहिए होगी, आयनाइजेशन इंथैल्पी तभी प्रोवाइड होगी, ठीक है, तभी वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएगा, ऐसे तो नहीं कर पाएगा। तो वो एक इन्वायरमेंट के केस में आता है। So that is why the definition is quite modified, and it has been written as the electrode potential is only the difference of potential between two electrodes that we can measure by combining them to give a complete cell। यानी कि जब हम कंप्लीट सेल बनाते हैं तो उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो क्वाइट डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों का ले लिया, बट यहाँ पे एक और चीज़ थी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, वो चेंज नहीं करती, बट जो सेल का पोटेंशियल है वो तो चेंज कर रहा है। जब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का तो हमें एक रेफरेंस सेट करना पड़ता है, और रेफरेंस सेट जो होता है वो होता है जनरली नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, ठीक है। इसको हम इसकी वैल्यू जो है वो आर्बिट्रली फिक्स कर देते हैं 0, एंड विद रिस्पेक्टिव टू दिस we have decided that this is the value of this। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्टार्ट में जैसे जब यूनिटरी मेथड स्टार्ट किया गया तो हमने मान लिया कि देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 1 फीट डिसाइड कर दिए यूनिवर्सली। अब इसके मल्टीप्लिकेशन में हमने देख लिया 2 फीट होगा, 3 फीट होगा, आधा फीट होगा, 2.5 फीट होगा, लाइक दैट, बट एक तो हमने फिक्स कर दिया ना। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने रेफरेंस के लिए एक आर्बिट्रली फिक्स कर दी वैल्यू कि हाइड्रोजन जो है वो 0 है, और उसके कंपैरिजन में कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ गई, ठीक है। एग्जैक्ट तो अभी तक कोई टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास कि हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्यूचर में होगी तो सभी की एग्जैक्ट आ जाएंगी, ठीक है, तब थोड़ा सा वैल्यूज आगे पीछे भी हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कमिंग अप टू द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। सो हमने पढ़ा अभी तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो एक 2 टाइप्स का पोटेंशियल होता है। होता कुछ नहीं है, जब आप टेंडेंसी है लूज करने की इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन करने की, सेल्फ ऑक्सीडेशन करवाने की, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिसकी टेंडेंसी रिडक्शन की है दैट इज नोन एज द रिडक्शन पोटेंशियल। अब IUPAC ने ये बताया कि IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्रीज ने ये बताया कि हाँ, आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अलग से करें, रिडक्शन पोटेंशियल हम अलग से करें। इसने एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता दिया, ये बिकॉज वी नो दैट रिडक्शन जो है वो उल्टी होती है, ठीक है। रिडक्शन इज ऑपोजिट टू ऑक्सीडेशन, या और साइमल्टेनियसली अकरिंग भी होती हैं। तो आप बोल सकते हो कि जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है दूसरे साइड में क्या होती है, रिडक्शन हो रही होती है, और जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है उसके ऑपोजिट साइड में ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन द अबव केस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द अबव केस is known as the reduction potential। And oxidation potential of half cell is inversely proportional to the concentration of its ions in the solution। बेसिकली हाफ सेल, बिकॉज ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो है उसमें जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। अगर कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है आयंस की, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। यही चीज़ हमने सोल्ट ब्रिज की एप्लीकेशन में भी पढ़ा था। इस लाइन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है
ये क्या बता रहा है, मान लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये आ गया पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। अब मान लेते हैं जैसे जिंक का अगर हम मान के चलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो यहाँ पे बताया कि सॉल्यूशन फेज में जिंक 2 पॉजिटिव है। अब जिंक 2 पॉजिटिव की अगर सॉल्यूशन फेज में कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो अकोमुलेट कर जाएगा और अकोमुलेशन के कारण इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन कम है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो इसके ऑपोजिट होगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या बोलता है, रिडक्शन पोटेंशियल बोलता है कि उसकी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, तो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, उतना ज़्यादा वो रिड्यूस होगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज़्यादा हो जाता है। सो ये कंप्लीटली ऑपोजिट वे में चलते हैं। एंड जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट द पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू द माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। और IUPAC ने यही बोला कि हमने रिडक्शन पोटेंशियल को ही मान के चलना है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही मान के चलना स्पेसिफिकली। जब तक अगर हम क्वेश्चन में या एग्जामिनर ने नहीं बताया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही मान के चलते हैं। तभी तो जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चलती है टॉप टू डाउन, तो पहले आती हैं नेगेटिव वैल्यूज, फिर आती हैं 0, देन आती हैं पॉजिटिव वैल्यूज। ऐसे नहीं है ना, तो हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 टू पॉजिटिव जाती और ये भी 0 टू पॉजिटिव जाती, ठीक है। बट हमने दोनों को ही एक पैमाने पे या एक ही आप बोल सकते हो स्केल पे जब मेजर किया, तो एक वैल्यू 0 से पॉजिटिव में चली गई और एक वैल्यू नेगेटिव में चली गई, बिकॉज इफ दिस इज ए पॉजिटिव देन ऑपोजिट ऑफ दिस इज नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा है। देन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो डायग्राम है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कंटेनर होता है, कंटेनर में 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन यानी कि HCl सॉल्यूशन डाला होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स, अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आती है वो हम देखेंगे। दैट हाइड्रोजन गैस जो है एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस की जाती है थ्रू दिस अपरेटस। एंड सेंटर में एक प्लैटिनम वायर होती है जो कि कनेक्टेड की होती है इलेक्ट्रिसिटी से, और यहाँ पे एक मरकरी बिछाया होता है। नीचे भी प्लेटिनाइज्ड जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होती है कवर्ड इन द प्लैटिनम ब्लैक। तो दिस इज ए सेटअप ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये जो है जरूरी नहीं इलेक्ट्रिक, या फिर आप बोल सकते हो कि दूसरी इलेक्ट्रोड से हम जब इसको कनेक्ट करते हैं, जब दूसरी हाइड्रोजन से जब हम इसको सॉरी इलेक्ट्रोड से जब हम या दूसरे जो सेट है उससे कनेक्ट करते हैं, जैसे जो रिडक्शन हाफ सेल होगा या जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा विद रिस्पेक्टिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जब उससे कनेक्ट करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाते हैं, और अल्टीमेटली H2 गैस जो है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो जाती है, H2 गैस जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की होती है वो यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो जाती है। तो इससे आपको आप लगा सकते हो वैल्यू, जो उसकी वैल्यू आती है यहाँ पे जो हमने अपरेटस यूज़ किया होता है। जैसे मान लो जहाँ पे 2 डिवाइसेस होती हैं यहाँ पे, अब मान लो यही चीज़ आगे जाके कनेक्ट होगी और एक और कंटेनर के साथ कनेक्ट हो जाएगी जहाँ पे उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड डाली होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वैल्यू वर्कआउट करेगी। देन yes, so today in this video we will only look up to the standard hydrogen electrode, and basically through this apparatus or through this standard hydrogen electrode we can measure the different electrode potentials of different electrodes, whether it is an oxidation potential or reduction potential, and we can measure it. But again, through sign convention we have to make sure one thing, that E reduction is equal to E minus of E oxidation, and this is the main reason or cause behind the electrochemical electrochemical series is placed in a single scale rather than 2 scales are required. So that's up for today's video, and the next topics will be covered in the next video. And if you have any kind of doubt, you can directly mail me through this email ID, that is
jamwal1998@gmail.com, or you can directly WhatsApp me through this number. So basically, this is the end of the video, and if you have any kind of doubt, please let me know. I will definitely try to answer it in a short period of time. Thank you.